Hello, this is your computer science teacher Pranay Bhumik. Today we are again going to discuss about series data structure in pandas. More specifically, we are going to discuss about the head and tail functions in the series. So what is head and tail functions? As you can read here, calling just head on a series will only print the first 5 elements. Actually, better than reading from this PPT, it is better if I show what head and tail functions actually do. Okay, so let's start. So first of all, let us create a series. So to create a series, of course, we'll have to import pandas as PD. Okay, now as you can remember, either we can create a series using a numpy array or using a list or a dictionary. So we choose to keep it simple, and then we will create a series using just a list. So s is equal to pd dot series using just a list. Okay, so we will use 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so we created a series based upon a list. Let's print it to see if this works. Sorry, yes, and this works perfectly. Okay, so let us first discuss what the head function does. So it says here, calling the head function on a series will only print the first 5 elements of the series. Okay, so we will, how do you use the head function? So we will use the head function upon the series, means s dot head. Okay, so this is the series and we are using the head function upon the series. So what this will do, it will print what it says. Calling just the head function on the series will print the first 5 elements of the series. So it will print the first 5 elements of the series. So it will print 1 2 3 4 and 5. Okay, but let's see, let's run the program, and there it is. Calling the head function on the series prints the first 5 elements of the series. Okay, so similarly, calling just the tail function of the series will print the last 5 elements of the series. See, 5 6 7 8 9. So these are the last 5 elements of the series, 1 2 3 4 and 5. Okay, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, these are the last 5 elements of the series. Okay, so what head, so let us revise what head does. Head prints the first 5 elements of the series. Okay, and using just tail, it prints the last 5 elements of the series. Okay, but what if there are only, say, 1 2 3 4 elements? What if there are only 4 elements in the series? Then what will be the output? Well, as common sense dictates, it cannot print the first 5 elements, so it will print the entire series. Okay, so calling head function upon a series prints the entire series if the series has less than 5 elements. Similarly, calling tail function upon the series which has less than 5 elements will print, can you guess? It will also print the entire series. It is very simple, just use your common sense. Okay, now
let us see the PPT. Here it says calling just a head on the series will only print the first 5 elements of the series, that we have already seen. Calling just the tail on the series will only print last 5 elements of the series, that also we have already seen. If your series has less than 5 elements, then it will show all the elements. This is in case of head. I haven't written it, I will correct it later. And the same is with tail. If your series has less than 5 elements, calling tail upon the series will print all the elements. Okay, moving on. So this is a example of a series upon which the head function was called. So here you can see there are 7 elements on the series, and calling head upon this series prints only the first 5 elements. Okay, here is another series. This series has only 4 elements, so calling head upon this series, calling head upon this series prints all the elements. Again, this is a series which has 7 elements. Calling tail upon this series prints only the last 5 elements. So as we can see, the last 5 elements are 3, 4, 5, 6, 7. See? So I hope this is clear. And this is a series which has only 4 elements, and calling the tail function upon this series will print all the elements. Okay, I hope this is clear. Next let us solve a problem. Here it says write a program to print the first 3 elements from a series having numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so we have to first create a series that is having all this 10 numbers. So what we will have to do, we will have to first import pandas as PD, obviously, because we want to use the series function. Then let's create a series s equals to PD dot series. Okay, and we base it upon a list, and the numbers we put in the list are these numbers. What are these numbers? 1 to 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, then as the ritual goes, let's print this s and check if our program works. It will work. Okay, it works perfectly. Then what does it say? Write a program to print the first 3 elements from the series. So we don't have to print the first, so just calling head upon this series, what would it will give? The first 5 एलिमेंट. हम लोगों का, अगर हम लोगों ने सीरीज के ऊपर बस सिंपली हेड फंक्शन यूज कर लिया तो ये क्या करेगा, हम लोगों का ये सीरीज से फर्स्ट 5 एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा. लेकिन हम लोगों को क्या बोला है, हम लोगों को बोला है कि हम लोगों को सीरीज से बस फर्स्ट 3 एलिमेंट्स प्रिंट करना है. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि हम लोगों को फर्स्ट 5 एलिमेंट्स नहीं चाहिए, हम लोगों को फर्स्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए. ओके, हम लोग को फर्स्ट 5 एलिमेंट्स नहीं चाहिए, हम लोग को फर्स्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए. एंड देयर यू गो, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट आर प्रिंटेड. ओके, अगर फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स मतलब आगे से, सीरीज के आगे से करना है तो हेड होगा. एंड लास्ट 3 एलिमेंट्स, लास्ट 4 एलिमेंट्स, लास्ट 5 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स कुछ भी हो, अगर लास्ट से बोला तो टेल होगा, क्योंकि आगे से मतलब हेड, पीछे से मतलब टेल. हाँ, सांप का हेड कहाँ होता है, उसके आगे होता है, और सांप का टेल कहाँ होता है, उसके एंड में होता है. ठीक है, तो आगे से अगर हम लोगों को प्रिंट करना है तो हम लोगों को हेड फंक्शन यूज करना पड़ेगा, पीछे से अगर हम लोगों को प्रिंट करना है तो टेल फंक्शन यूज करना पड़ेगा.
तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग, आप लोगों ने आंसर तो देख ही लिया होगा, बट देन ऑब्वियसली एस डॉट हेड 3, बिकॉज हम लोगों को फर्स्ट 3 एलिमेंट्स प्रिंट करना था। ठीक है, हम लोगों का यहाँ पे आउटपुट आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी आप लोगों को आया होगा, आप एक बार गेस करने का ट्राई कीजिए इसका आंसर क्या होगा। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट लास्ट 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द सीरीज हैविंग नंबर्स ये 1 to 10। ठीक है, तो पहले जैसा ही प्रॉब्लम है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे सीरीज क्रिएट हो गया है 1 to 10। ओके, तो ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को क्या, बस डिफरेंस क्या है, प्रिंट द लास्ट 3 एलिमेंट्स। हम लोगों को लास्ट से 3 एलिमेंट प्रिंट करना है। तो लास्ट से अगर 3 एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एस डॉट टेल। एस डॉट टेल, लास्ट से कितने एलिमेंट्स प्रिंट करना है, लास्ट 3 एलिमेंट्स, तो एस डॉट टेल 3। तो यहाँ पे देखिए लास्ट से 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, 8, 9 और 10। ठीक है, तो यही है हम लोगों का प्रोग्राम। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने एक हेड का प्रोग्राम कराया, एक टेल का प्रोग्राम कराया। तो आप लोगों को क्या क्रिएट करना है, आप लोगों को क्रिएट करना है कि एक सीरीज़ क्रिएट करना है। हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी तक सीरीज़ एक बस लिस्ट के बेसिस पे बना रहे हैं और उसका इंडेक्स जो है कंप्यूटर असाइन कर रहे हैं। इसको अगर हम लोग एस को पूरा प्रिंट कर दें तो इसका इंडेक्स कौन असाइन कर रहा है, इसका इंडेक्स कंप्यूटर असाइन कर रहा है 0 to 9। ठीक है, बट देन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि एक सीरीज आप क्रिएट कीजिए, हाँ, जिसमें डाटा एलिमेंट्स हो 8, 9, 10, -1, -2 और -8। ठीक है, आपका डाटा क्या होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डाटा दिया 1 to 10, आपका डाटा क्या होगा 8, 9, 10, -1, -2 और -8। ठीक है, लेकिन उसके इंडेक्सेस क्या होने चाहिए, उसके इंडेक्सेस होने चाहिए A, B, C, D, E और F। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको हिंट देता हूँ, बट लेन करना आप ही को है। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी, आप नंपी एरे लेके कीजिए या सीरीज़ लेके कीजिए। मैं सीरीज़ लेके करता हूँ यहाँ पे। तो सीरीज़ लेके हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स क्या क्या दिए हुए, 8, 9, 10, -1। तो आपको ऐसे नंबर्स सारे डाटा यहाँ पे डालने हैं आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट 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 आपको बाकी का कंप्लीट करना है। ठीक है, बट देन फिर अगर हम लोगों ने बस ये किया तो क्या होगा, कंप्यूटर खुद से यहाँ पे इंडेक्स असाइन कर देगा। ये 0, 1, 2, 3 ये कंप्यूटर खुद असाइन कर देगा। लेकिन हम लोगों को कंप्यूटर का असाइन किया हुआ इंडेक्स नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि ये यूज़र डिफाइन इंडेक्स सीरीज़ में रहे। यूज़र डिफाइन इंडेक्स A, B, C, D, E और F। तो ये देने के लिए क्या था, आप लोगों को याद होगा पहले वाले टॉपिक्स में, पहले वाले वीडियोस में मैंने कराया था कि सीरीज़ में एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है इंडेक्स इक्वल्स टू ये। ठीक है ना, तो जितने एलिमेंट्स उतने इंडेक्स। ठीक है, तो आपको इंडेक्स में क्या डालना है, A, B ऐसा करके आप डाल लीजिए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सीरीज़ बनाना। तो मैं ये दे रहा हूँ ताकि आपका सीरीज़ का पिछले टॉपिक्स का आपका रिवीजन हो जाए। लेकिन मेन प्रॉब्लम आपका ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम है ये सीरीज़ बना के आपको प्रिंट करना है कि द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स एंड द लास्ट 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द सीरीज़। तो आपको ये सीरीज़ बनाना है और सीरीज़ से फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आपको प्रिंट करना है और लास्ट के 3 एलिमेंट्स प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे आप, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स मतलब आगे से 3 एलिमेंट आपको प्रिंट करना है, मतलब आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, हेड। लास्ट 3 एलिमेंट्स मतलब लास्ट से 3 एलिमेंट्स प्रिंट करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करना है आपको, टेल। ओके, तो ये आपका पहला प्रॉब्लम है।
दूसरा प्रॉब्लम है आपको प्रिंट करना है द एलिमेंट एट इंडेक्स डी। तो इंडेक्स डी में कौन सा एलिमेंट है? -1। तो आपको सीरीज से इंडेक्स डी में जो एलिमेंट है वो आपको प्रिंट करना है। ठीक है, प्लीज़ ये होमवर्क ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको करेक्ट करने का ट्राई कीजिए ज़रूर, बट देन करेक्ट करना कंपलसरी नहीं है। मैं इस होमवर्क का आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा, बट आपका एफर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हेड और टेल कैसे काम करता है ये सीखने को मिला होगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।